us propagation of errors. सर उस दिन एक क्वेश्चन सेंड किए थे, वो बता दीजिए ना उसका आंसर। अच्छा, जो होमवर्क दिया था, एरर, first we'll discuss about error in the sum of quantities. Error in the sum of quantities, है ना? So suppose x is a quantity which is equal to a plus b. Okay. So suppose x equal to a plus b, right? Now let delta a equal to absolute error in measurement of a. Let delta a equal to absolute error in measurement of a. Delta b equal to absolute error in measurement of b. Right? तो मान लो ना, absolute error in measurement of a is delta a and absolute error in measurement of b is delta b. So delta x equal to absolute error in calculation of x. Now let's say delta x equal to absolute error in calculation of x, that is sum of a plus b. ठीक है ना? So the maximum possible error, so the maximum possible error in x is delta x equal to plus minus delta a plus delta b. So that is equal to plus minus delta a plus delta b, है ना? So when we are calculating maximum possible error, ठीक है ना? So that is plus minus delta a plus delta b, ठीक है ना? So actually maximum possible error क्या होगा? कि एरर इन ए और एरर इन बी, देखो ब्रैकेट में जो टर्म है वो प्लस साइन में है, ब्रैकेट में जो टर्म है, the term is in the bracket is in positive sign, right? So we have basically mentioned positive sign in the bracket, positive sign in the term in the bracket. That means when we are taking maximum possible error in sum of quantities, so we need to add the errors in the individual quantities, है ना? और लास्ट में वो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है, जब हम एरर लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मतलब मान लो अगर 3 क्वांटिटीज होते तो बाहर में प्लस माइनस है, ए बी सी 3 क्वांटिटीज है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होता है? प्लस माइनस। अब ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है वो सब प्लस में होता, डेल्टा ए एरर इन ए प्लस डेल्टा बी एरर इन बी प्लस डेल्टा सी एरर इन सी. इज दैट क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर. ठीक है ना? तो परसेंटेज एरर इन द वैल्यू, है ना, ऑफ x is percentage error in the value of x, right, equal to
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी into 100%. So what is percentage error? Percentage error in the value of x equal to delta a plus delta b by a plus b into 100. So percentage error क्या होता है? जो absolute error होता है divided by the magnitude of the quantity into 100, है ना? तो बेसिकली एब्सोल्यूट एरर है ना, परसेंटेज एरर क्या होता है? मान लो परसेंटेज एरर इन ए, वो क्या होगा? एरर इन ए divided by the quantity magnitude of a into 100%. So that becomes percentage error, है ना? So next is error in the difference of quantities. तो सारे क्वांटिटीज के डिफरेंस में जो एरर है ना, सपोज x इक्वल टू a माइनस b, है ना? एरर इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, सपोज x इक्वल टू a माइनस b, ठीक है ना? देन एब्सोल्यूट एरर, है ना? तो लेट डेल्टा a, okay, can I remove this slide? Can you move to a new slide? So wait for a second. Sir. Okay. So let me move to another slide. है ना बच्चों? Let delta A is equal to absolute error in measurement of A. Absolute error in measurement of A. है ना? डेल्टा B क्या होगा? That is equal to absolute error in measurement of B. डेल्टा X क्या होगा? Absolute error in calculation of X. है ना? डेल्टा X is equal to absolute error in calculation of X. That is difference of A and B. है ना? So X is difference of A and B, है ना? तो यहाँ पे भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा? सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है ना, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज इन एक्स is delta x, that is equal to plus minus delta a plus delta b. समझ में आया ना? यहाँ पे भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर तुमको निकालना ना, मे बी एक्स इज डिफरेंट ऑफ क्वांटिटीज, है ना? एक्चुअली एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स इक्वल टू ए माइनस बी.
तो है ना, तुमको लगेगा कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम नहीं होगा, दिस इज नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए मुझे सारा एरर ऐड करना पड़ता है। मैक्सिमम एरर के लिए फाइंड आउट करने के लिए है ना, इंडिविजुअल एरर के क्वांटिटीज को ऐड करना पड़ता है। सर हाँ सर लेकिन सेकंड टॉपिक तो है एरर इन द डिफरेंसेस ना, तो फिर यहाँ प्लस का साइन है, डिफरेंस का होना चाहिए ना। error in the difference of quantities. See, error in the difference of quantities and difference in error of quantities, दोनों दोनों में फर्क है, ठीक है ना। error in the difference of quantities, अगर ये बोला जाए error in the difference of quantities, मतलब एक क्वांटिटी दो अलग अलग क्वांटिटी का डिफरेंस है, तो उसमें एरर क्या होगा, है ना। और मान लो और एक चीज है, डिफरेंस इन एरर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है ना, दोनों का मतलब अलग है। एरर इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज मतलब ये है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज ना डेल्टा ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, ये जो डेल्टा ऑफ ए माइनस बी है दैट इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है ना, क्योंकि मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालता हूं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस इन एरर ऑफ क्वांटिटीज क्या है, डिफरेंस इन एरर ऑफ क्वांटिटीज जो है, एक का एरर डेल्टा है, दूसरे का एरर डेल्टा बी है, तो दोनों का डिफरेंस, दोनों एरर का डिफरेंस, ठीक है ना। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। है ना, इट डिपेंड्स ऑन है ना So- द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, है ना, वी हैव टू वेरी क्लोजली ऑब्जर्व द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, है ना। मैक्सिमम, है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए ना दोनों को ऐड करना पड़ता है, दोनों के एरर को ऐड करना पड़ता है। ओनली व्हेन यू ऐड द एरर देन यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एरर, ठीक है ना। फाइनल में वो प्लस हो सकता है, वो माइनस हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम होने के लिए पहले तो इंडिविजुअल एरर को ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज परसेंटेज एरर। अभी तो है ना हम लोग परसेंटेज एरर क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर, so basically what is percentage error, percentage error is, है ना, basically delta x by x into 100, है ना, so that is equal to delta a plus delta b by a minus b into 100, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या है, दैट इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और एक्स क्या है, एक्स इज डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी, सो एक्स इक्वल टू ए माइनस बी, है ना। दिस इज एरर इन एक्स, और दिस इज लेट्स से परसेंटेज एरर, है ना, इन एक्स, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। यस सर। यस। सर अब ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस दोनों लगाए हैं, तो प्लस कब यूज होगा और माइनस? परसेंटेज में तो माइनस नहीं आएगा ना, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ऊपर वाला प्लस देखो माइनस, देखो, हाँ वही ऊपर वाला जो है ना, देखो एरर पॉजिटिव, फाइनल एरर जो है वो पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर हो सकता है, मतलब फाइनल टोटल एरर जो है। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, देखो मान लो एक में एरर आ रहा है 3, ठीक है, दूसरे में एरर आ रहा है 4, ठीक है ना, तो टोटल एरर क्या होगा, टोटल एरर ना 7, या फिर वो -7 भी हो सकता है, मतलब वो एरर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है ना, वो पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है या फिर नेगेटिव साइड में हो सकता है, इसका यही मतलब है, ठीक है ना।
Yes, sir. हमें मैक्सिमम निकालना है ना बेसिकली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज राइट डाउन एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज है ना। सपोज x इक्वल टू a into b, suppose x equal to a into b, suppose x equal to a into b, let delta a equal to absolute error in measurement of a, delta b equal to absolute error in measurement of b, है ना। तो मान लो when I'm saying that x equal to a into b, delta a is equal to absolute error in measurement of a, delta b equal to absolute error in measurement of b, है ना। So if delta x equal to absolute error in measurement of x, absolute error in measurement of x, and then absolute error in measurement of x, then delta, then fractional error in x, ठीक है ना। Can I move to next slide? Yes, sir. Yes, sir. So can you go back to the previous slide? Okay. Here is the previous slide. Done? Yes, sir. Okay. Now, absolute error in measurement of x. Sorry, fractional error. So, the maximum fractional error, the maximum fractional error in measurement, है ना, maximum fractional error in x, in x is delta x upon x, that is equal to plus minus delta a upon a plus delta b upon b, है ना। So maximum fractional error in x is delta x upon x. So that is equal to plus minus delta a upon a plus delta b upon b, ठीक है ना। तो ये हो गया फ्रैक्शनल एरर, ठीक है ना। सो देन व्हाट इज, ये तो फ्रैक्शनल एरर हो गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, है ना। देन परसेंटेज एरर,
in x is delta x upon x into 100%. So that is equal to delta a upon a plus delta b upon b into 100%, है ना? So that becomes the percentage error. Okay, next is error in the division of quantities. Next is error in the division of quantities. सर Yes. फ्रैक्शनल एरर क्यों नहीं है? एब्सोल्यूट एरर यहाँ नहीं हो सकता है? तो एब्सोल्यूट एरर में यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर लेना है. एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे क्या होगा? तो फ्रैक्शनल मिल गया ना. एक्चुअली फ्रैक्शनल से एब्सोल्यूट मिल जाएगा ना. ये डेल्टा x है, तो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, है ना, इंटू ए बी होगा. x क्या है? x मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ए बी. सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b. ठीक है ना. एक्चुअली अगर हम फ्रैक्शनल एरर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना. अच्छा, मैं इसको ना नीचे लिख लेता हूँ प्रॉपरली, क्लियरली वहां से हटा देंगे. ठीक है. मेरे पास फ्रैक्शनल एरर है, तो मेरे पास अभी यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शनल एरर है. सो व्हाट इज दिस फ्रैक्शनल एरर दैट आई हैव विथ मी? तो फ्रैक्शनल एरर इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, है ना. So fractional error is delta x upon x, that is equal to plus minus delta a upon a plus delta b upon b. Now delta x is equal to plus minus delta a upon a plus delta b upon b into x. Delta x is equal to plus minus x क्या होगा? x इक्वल टू ए बी, है ना. तो ये क्या हुआ? ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, है ना. so that is equal to plus minus ए बी मल्टीप्लाई कर लो. तो ए बी मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? बी डेल्टा ए प्लस, फिर सेकेंड टर्म में क्या हो रहा है? बी कैंसिल हो रहा है, ए डेल्टा बी implies absolute error delta x is equal to plus minus b delta a plus a delta b, है ना बच्चों. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली ना फायदा, मतलब व्हाट इज द एडवांटेज दैट वी आर गेटिंग हियर? द एडवांटेज इज दैट, है ना, फ्रैक्शनल एरर itself, once we can write the fractional error, from the fractional error we'll get the absolute error. ठीक है ना. Okay, so I'm moving to the next slide. एक मिनट. एक मिनट. ओके. Yes, sir, done. Move on another slide. क्या हुआ बेटा? हो गया सर. हो गया ना. ओके. ओके, देन
है ना बच्चों? चलो तो अब इसको हटा देते हैं, है ना? अब हम फिर इसके ऊपर थोड़ा आगे का पढ़ाई देखते हैं ना, आगे हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, है ना? सो व्हाट इज एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज? ठीक है, लेट अगेन सपोज x इक्वल टू a बाई b। डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज मतलब x इक्वल टू a बाई b। सपोज x इक्वल टू a बाई b, है ना? अगर x इक्वल टू a बाई b है देन ऑल्सो, then if delta a is error in a, delta b is error in b, and delta x is error in x, and delta x is error in x, delta x is error in x, then, है ना? Delta a is error in a, delta b is error in b, and delta x is error in x, then fractional error in x, तब fractional error जो है x में, fractional error in x is given as, fractional error in x is given as delta x upon x, delta x upon x इक्वल टू, यहां पे भी वही होगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। either we have got product of quantities or we have got division of quantities। या तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज है या फिर डिविजन ऑफ क्वांटिटीज है। फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला सेम है, either x equal to a into b or x equal to a by b, we still have got the same formula for fractional error। ठीक है ना? okay, now percentage error, in the value of x is delta x upon x into 100 is equal to plus minus 100%, है ना? so that is percentage error in x। ठीक है ना? ओके, ये समझ में आ गया बच्चों? मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटीज और डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, है ना? दोनों में परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला सेम है। राइट स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Sir.
Okay. Next is error in quantities raised to the power. Error in quantities raised to the power, raised to some power. Next is error in quantities. Error in quantities. Sir, please previous page. अच्छा, previous page. Yes, sir. So here is the previous page. Okay, done, sir. Done. Okay. So next is error in quantities raised to some power. Error in quantities raised to some power. ठीक है ना? So what is the error in quantities raised to some power? ठीक है? So first point is, if let's say if x is a quantity which is equal to x is a quantity which is equal to a to the power which is a to the power n by b to the power m, or x is equal to a to the power n into b to the power m, दोनों के लिए सेम ही होगा, है ना? मतलब error, fractional error ना? Then the fractional error in x is given as, when the fractional error in x is given as delta x upon x, that is equal to n into delta a upon a plus m into delta b upon b. So this is the fractional error in x, which is given as delta x upon x is n, जो मान लो ना delta a upon a is fractional error in a, लेकिन total fractional error in a to the power n क्या होगा? So fractional error in a to the power n is n times delta a upon a. Fractional error in a to the power n is n times delta a upon a, ठीक है? And b to the power m is m times delta b upon b, है ना? तो फ्रैक्शनल एरर में क्या होता है, जो मान लो जो भी वेरिएबल का जो पावर होता है, अब उस वेरिएबल का जब हम फ्रैक्शनल एरर लेते हैं तो वो पावर अभी उसका कोएफिशिएंट बन जाता है ना? द पावर बिकम्स द कोएफिशिएंट, है ना? व्हेन ऑफ द फ्रैक्शनल एरर, पावर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इन द physical quantity becomes the coefficient while we express the fractional error term. ठीक है ना? समझ में आया? Is that clear now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अगर तुम लोगों को समझ में आ गया ना तो फिर बढ़िया है. Sir, हाँ, sir, इस सर एक बार और बता दीजिए ना. ये वाला, Yes, ये sir. वाला ना, ठीक है. अरे Yes, देखो, sir. जब हम फ्रैक्शनल एरर लेते हैं, a का फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? डेल्टा a अपॉन a, ठीक है ना? लेकिन a टू द पावर n, अगर a टू द पावर n है ना? सपोज when I express fractional error of a to the power n, so basically fractional error of a to the power n, that is equal to n times fractional error in a.
है ना. Similarly, fractional error of b to the power m is equal to m times delta b upon b. a का फ्रैक्शनल एरर होगा n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a, b का फ्रैक्शनल एरर होगा m टाइम्स डेल्टा b अपॉन b. इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है ना. Yes, sir. हाँ, तो अगर इन दोनों का मतलब प्रोडक्ट टर्म में फ्रैक्शनल एरर है तो दोनों का ऐड करना पड़ेगा. ठीक है ना. अगर दोनों प्रोडक्ट टर्म है a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर m और या फिर a टू द पावर n इनटू b टू द पावर n, है ना. सो फ्रैक्शनल एरर ऑफ a to the power n divided by b to the power m or a to the power n into b to the power m, that is equal to n times delta a upon a plus m times delta b upon b. ठीक है ना. तो ये हो गया. ओके. मैंने हटा दिया वो स्लाइड. Sir, previous slide, 1 minute, please. अच्छा 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 ठीक है. सो हियर इज द प्रीवियस स्लाइड. Sir, done. डन. ओके. ओके नेक्स्ट इज, चलो अभी ना एरर का कॉन्सेप्ट ओवर है ना. लेट अस practice some questions so that our concept becomes even more clear, है ना. Now the question is, the initial and final temperatures of water, the initial and final temperatures of water as recorded by an observer are 40.6 plus minus 0.2 degree centigrade and 78.3 plus minus 0.3 degree centigrade. Calculate the rise in temperature with proper limits. Calculate the rise in temperature with proper error limits. Initial and final temperatures of water as recorded by an observer are 40.6 plus minus 0.2 degree centigrade and 78.3 plus minus 0.3 degree centigrade. Calculate the rise in temperature with proper error limits.
कुछ टाइम सोच के बोलो फिर ना. इफ यू कैन डू इट देन I'll do it for you. बना नहीं बना? अरे देखो यहाँ पे θ1, व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर θ1? तो बन जाएगा. ये से बन गया. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. पल्लवी वेरी गुड. सर बन गया. आंसर क्या है बोलो? 37.7 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. हाँ, एरर हमेशा ऐड होता है, ठीक है ना. जो एरर है वो ऐड कर देना है. मान लो θf तो है ना, वो कितना होगा? मतलब फाइनल टेम्परेचर 78.3 प्लस माइनस 0.3. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, है ना. तो इसका मतलब है सब लोग समझ गए हो, ठीक है. फिर भी फॉर्मेलिटी में बना लेता हूँ, ठीक है. चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 78.3 माइनस 40.6, ठीक है ना. So that is equal to 37.7. Sorry, change in temperature. है ना. So change in temperature, that is theta final minus theta initial. So this is change in temperature. Error क्या है? Error is delta theta, that is equal to delta theta in initial plus delta theta in final. दोनों का ऐड करना है. 0.2 प्लस 0.3, so that is equal to 0.5. अब ये प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है ना. Implies change in temperature or rise in temperature. Implies rise in temperature is, है ना. वेरी गुड बच्चों, सबने बना लिया था. राइज इन टेम्परेचर क्या होगा? राइज इन टेम्परेचर इज 37.7 प्लस माइनस 0.5, ठीक है ना, डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. तो जो लोग नहीं बनाए थे सब ना, उनको समझ में आ गया. बहुत सारे लोग तो बना लिए थे, लेकिन है ना, जो लोग का नहीं बना था उनको समझ में आ गया कि नहीं, है ना बच्चों? बाकी लोगों को समझ में आ गया ना? प्राजक्ता बेटा समझ में आ गया? Yes, sir. आयुष, अच्छा मैंने हटा दिया इसको, ठीक है. आई विल मूव टू अनदर स्लाइड. हम लोग एक और प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है. नाउ लेट अस सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम, ठीक है. ओके, हाँ वो प्रॉब्लम ये है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ फील्ड. लेंथ एंड breadth of a field are measured as L equal to 120 plus minus 2 meters and B equal to 100 plus minus 5 meters.
respectively. What is the area of the field? Length and breadth of field are L equal to 120 plus minus 2 meters, breadth equal to 100 plus minus 5 meters respectively. What is the area of the field? एरिया निकालना है ना, एरिया ये निकालना है. देखो ना, परसेंटेज एरर से निकाल सकते हो. सर I mean, बना रहे हैं 2 मिनट अच्छा बना अच्छा, रहे हैं. ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, बना लो बना लो. अच्छा, आंसर किसने निकाला आंसर? अनीशा, यस सर. आयुष, मुस्कान, नंदिनी, निकिता. निकिता बेटा समझ में आ रहा है ना बेटा? निशा ने आंसर दे दिया. पल्लवी, शदाब ने भी आंसर दे दिया. और सॉरी निशा, तुमने भी बेटा आंसर दिया था ना? यस सर. तुमने कहाँ पे आंसर दिया था? वो क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में दिया था क्या? नहीं सर वो हम बताए चैट थे में? बस. अच्छा, बताए नहीं थे. सर बताए थे. ओके, चलो अभी मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना? हाँ, सब लोग जो लोग आंसर दे रहे हैं ऑलमोस्ट सबका सही है, ठीक है. वेरी गुड. सो एक्चुअली इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, है ना? सो बेसिकली ये जो है दैट इज इक्वल टू इंप्लाइज डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल. मतलब डेल्टा एल तो 2 है ना, 2 अपॉन 120 प्लस डेल्टा बी 5 अपॉन 100. So that is equal to 1 by 60 plus 1 by 20, है ना? That is equal to 4 by 60 implies delta A upon A is equal to 1 by 15. डेल्टा ए अपॉन ए क्या है? दैट इज इक्वल टू 1 by 15. ठीक है ना? व्हाट इज डेल्टा ए अपॉन ए? डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 1 by 15, 15. है ना? इम्प्लाइज अभी डेल्टा ए क्या होगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू ए बाई 15, ठीक है ना? अच्छा, बेसिकली एरिया क्या होगा? A इक्वल टू एल इंटू बी. सो दैट इज इक्वल टू 120 into 100.
सो 1.2 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। और ये जो डेल्टा ए है वो क्या है, a बाई 15 है, सो इज इक्वल टू 120 इंटू 100 बाई 15, तो ये आ गया 800, है ना। तो एरिया कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 0.8 0.08, सॉरी 0.08, है ना, इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 800 मीटर स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 0.08 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आई कैन एक्सप्रेस एरिया एज, एरिया इक्वल टू 1.2, है ना, प्लस माइनस 0.08 होल टू द पावर होल इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, है ना। सो दिस इज एरिया, दिस इज प्रॉपरली ये एरिया है। बच्चों ये समझ में आ गया, हाँ। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। सो लेट अस डू वन फाइनल क्वेश्चन, चैप्टर एंड है, अगले क्लास में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एंड आई विल गिव यू सम होमवर्क, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट मी वी कैन सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम। ठीक है ना बच्चों, so there is one question here, one more question, that's it। क्वेश्चन ये है, a physical quantity x, a physical quantity x is calculated from the relation x equal to a square b cube upon c root d if the percentage error in a comma b, c and d are 2%, 1%, 3% and 4% respectively, what is the percentage error in x? ठीक है ना, परसेंटेज एरर इन एक्स, पहले तो सोच लो, पहले पहले सोच लो, या फिर बना रहे हो तो अच्छी बात है। एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, c⁴ 1 d⁴ we can also write x like this, a square b cube c⁴ 1 d⁴, सर बन जाएगा। बन जाएगा ना। चलो ठीक है, बना के बोलो, आंसर बोलो।
स्नेहा बेटा समझ में आ रहा ना? सातक्षी बेटा, साक्षी, प्रीति, सर हाँ बोलो। अच्छा, इकरा बेटा, मुस्कान, नंदिनी, सब लोगों को समझ में आ रहा ना? सर But, Sir, I Yes, don't sir. understand anything. you got the answer? तो सॉल्व कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए। Okay. यस सर, बन गया। बन गया? यस क्या सर, है आंसर बोलो? 12%। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। 4 2 6, हाँ 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 हाँ, ठीक है ना? अच्छा बच्चों देखो, डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या होगा? 2 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए प्लस 3 टाइम्स डेल्टा बी बाय बी प्लस 1 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी प्लस हाफ इंटू डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक है ना? सो व्हाट विल बी परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू 2 times delta a upon a into 100 plus 3 times delta b upon b into 100 plus 1 into delta c upon c into 100 plus half into delta d upon d into 100, है ना? अच्छा देखो, अभी ये परसेंटेज एरर है। डेल्टा a upon a into 100 is percentage error in a, which is equal to 2%. Delta b upon b into 100 is percentage error in b, which is equal to 1%. Delta c upon c into 100 equal to percentage error in c, है ना? 3%, ठीक है ना? प्लस हाफ इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 क्या है? परसेंटेज एरर इन डी है, इंटू 4%, ठीक है? तो दैट इज इक्वल टू 4% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 2%, दैट इज इक्वल टू 12%, है ना? सो परसेंटेज एरर इन एक्स that is equal to 12%. So what is percentage error in x? Percentage error in x is equal to 12%, ठीक है? तो जितने लोगों ने आंसर बोला था सबका आंसर सही था। वेरी गुड बच्चों। चलो आज का क्लास खत्म है, अच्छे से रिवाइज कर लेना रोज के नोट्स को प्रॉपरली, रोज के बेसिस पर तुमको रिवाइज करना है बच्चों, है ना? रिवाइज इट ना रेगुलर बेसिस एंड डू वेल, ठीक है? कल जो है इसके और ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा इस चैप्टर का, प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट वीक से मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके। ओके सर। अभिनीत सर, अभिनीत सर तो है ही नहीं। हाँ बोलो। सर ये सोमवार से तो रिवीजन क्लास भी सुबह से होगा ना सर? हाँ सुबह में सर? सुबह में होगा रिवीजन क्लास, ठीक है? सर टाइमिंग सर? टाइमिंग में संडे संडे तक बता दूंगा, संडे इवनिंग तक बता दूंगा, ठीक है? आप जो होमवर्क दिए थे नेक्स्ट क्लास में उसका 10 नंबर बताइए तो। उसका ना बता दूंगा यस बेटा, सर। बता दूंगा, ठीक है? सर नेक्स्ट सॉल्व कल कल करिए। वाले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे ना।
कल वाले क्लास में डाउट डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू सर। या वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम बेटा। Sir. थैंक्स सर। ओके बाय सर।